پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے نام میں، جس کا نام سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، آج شب آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خداوند کا اور اس کے بعد آپ سب کا جو کرائسٹ ویژن یورپ کی اسکائپ آئی ڈی پر ہیں، پرستش کی گئی، دعائیں کی گئی، اور آپ جو میرے ساتھ مل کر فیس بک کے متعدد پیجز پر، یوٹیوب پر اور واٹس ایپ گروپس میں کلام سیکھتے ہیں، میں آپ سب کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ پاک روح آج اپنے زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے ہمیں سیر اور آسودہ کیجیے۔ آج کے دن ہم بائبل مقدس کی آخری کتاب یعنی یوحنا عارف کی معرفت لکھے گئے مسیح خداوند کے مکاشفہ سے سیکھ رہے ہیں۔ زمانہ بھی اختتام پر ہے اور یہ کتاب بھی کتاب مقدس کی اختتامی کتاب ہے، اور اختتامی ابواب پر بھی ہم ہیں جہاں سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ ان دنوں میں ہم 20 باب میں ہیں، اور آج آپ کے ساتھ مل کر اس 20 باب کی 11 آیت پر غور کروں گا، اور یہ بڑی خوبصورت اور گہری اور عمیق باتیں ہیں۔ ان باتوں کے سیکھنے کے لیے ڈبل کان لگانے کی ضرورت ہے، ذہنوں کو اور دلوں کو کھولنے کی، تاکہ خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہم کلام ہو سکے، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق کرتے بھی ہیں۔ 20 کی 11 میں یوں لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ مقدس یوحنا پتمس کے جزیرے میں روح القدس کی تحریک سے کچھ رویائیں دیکھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ان کو دکھائی، اور بحکم خداوندی مقدس یوحنا ان رویاؤں کو لکھتے چلے جا رہے تھے، کیونکہ حکم ہوا تھا، اس لیے کہ 2021 میں اور آپ ان باتوں کو سیکھ کر اپنے آپ کو الرٹ کر سکیں، تیار کر سکیں۔ بائی دا وے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2021 سے پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں، نو نو نو، ابتدائی صدی عیسوی سے لے کر آج تک، اور جب تک خداوند آ نہیں جاتے، اس وقت تک کے لیے یہ باتیں بڑی اہم اور معنی خیز ہیں۔ اور مقدس یوحنا محبت کا رسول یہ فرماتے ہیں، جب بھی کبھی کوئی نیا منظر دیکھتے ہیں، ان کو دکھایا جاتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ دیکھا، پھر میں نے دیکھا، پھر میں نے یہ آواز سنی۔ اور یہاں پر وہ فرماتے ہیں
फिर मैंने कुछ देखा। क्या देखा? एक बड़ा सफेद तख्त, नंबर 1, और नंबर 2, उसको जो उस तख्त पर बैठा हुआ था। और फिर क्या हुआ? उसके सामने से जो उस तख्त पर बैठा हुआ था, जमीन और आसमान भाग गए और उनको कहीं जगह न मिली। बस इतनी सारी ये आयत है जिस पर आज कलील सा, मुख्तसर सा, इस मुख्तसर से वक्त में हम गौर करेंगे। याद कीजिए कि 1000 साला बादशाही के बाद अब इस बड़े और सफेद तख्त की अदालत का मंजर हमें नजर आता है। ये आलीशान और अजीम तख्त है और ये कुदरत और अख्तियार और मर्तबत को बयान करता है कि इस तख्त की कितनी बड़ी अहमियत है। सफेद कलर एक तो बुजुर्गी को पेश करता है, पाकीज़गी को पेश करता है, और दूसरी बात अदल और इंसाफ को पेश करता है। और तख्त शाही को पेश करता है। अगर तख्त है तो कोई बादशाह भी है, और बिन तख्त के कोई बादशाह होता भी नहीं। और अगर बादशाह होगा तो तख्त भी होगा। तो मुकद्दस यूहन्ना को एक बड़ा सफेद तख्त जिस पर सरापा इंसाफ करने वाला बैठा हुआ है, इंतहाई बुजुर्ग है और पाक तरीन हस्ती और शख्सियत है, वो उस तख्त पर मुकीम है, बैठी हुई है। इस आयत में मुकद्दस यूहन्ना नाम लेकर नहीं बताते कि ये कौन है जो इस तख्त पर बैठा हुआ था। नो, नाम नहीं है। सिर्फ इतना कहते हैं कि उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, बस। कौन था वो यहां पर उसको इंट्रोड्यूस यानी मुतारफ नहीं करवा रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम यानी बाइबल मुकद्दस इस बात को बड़े वाज़े तौर पर बयान करती है कि वो आदिल और मुंसफ और जो रास्त है मासवा खुदावंद यीशु मसीह के और कोई भी नहीं है। इवन मैं आपकी खिदमत में कुछ हवाला जात भी पेश कर सकता हूं मुख्तसर तौर पर, ताकि हम हकायक को बेहतर तरीका से जान सकें और हमारे इल्म में और ज्यादा इजाफा भी हो सके। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और उसके 22 और 22 आयत से मैं आगे पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। लिखा है, क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है, ताकि सब लोग बेटे की इज्जत करें जिस तरह बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता वो बाप की जिसने उसे भेजा इज्जत नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है
और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। और यूं 27 आयत तक मैं 27 आयत तिलावत करता हूं, बल्कि उसे अदालत करने का भी इख्तियार बख्शा, इसलिए कि वो आदम जाद है। कलाम मुकद्दस की इस आयत और इन आयात के मुताबिक हम इस हकीकत को देख चुके हैं कि खुदा बाप ने अदालत का सारा इंतजाम अपने बेटे, मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द किया है, और वही वो आदल और मुनसिफ है। ये खुदाए सालूस की मौजूदगी उस तख्त पर है, जैसा हम यहां पर देखते हैं। और फिर जब हम ये अल्फाज तलावत करते हैं कि जो वो बैठा हुआ था उसके सामने से ये जमीन और आसमान भाग गए। भाई, जमीन की और आसमान की टांगे नहीं है, और ना ही उनके पैर हैं कि वो उड़े। इससे मराद दर हकीकत कुछ और है, जो मेरे और आपके समझने के लिए है। और हम इन बातों को खुदा के कलाम को ही बुनियाद बनाकर देखेंगे, ताकि हम बेहतर तरीका से जान पाए। मुकद्दस पतरस की मार्फत लिखा गया दूसरा खत, पतरस 2 बाब और उसकी दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 10 आयत। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। चोर की तरह से मराद अचानक। टाइम, डेट और सन, महीना और दिन नहीं बताया जाएगा। हालात ऑलरेडी अलार्मिंग साइन है। चोर की मानिंद आना से मराद अचानक। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरो गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाना। और अजराम फलक किसकी तरफ इशारा है? ये चांद, सितारे, आफताबो महताब, शम्सो कमर की तरफ। हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। तो आपने देखा है, जब अजराम फलक भी हरारत की शिद्दत के सबब से पिघल जाएंगे, और हम यहां देखते हैं आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएगा, और जमीन की भी बात लिखा है कि वो और अजराम फलक तमाम खत्म हो जाएंगे। भाग जाने से मुराद यही है। उलमा के 2 ख्यालात हैं। कुछ उलमा ये फरमाते हैं कि खुदा इसी जमीन और इसी आसमान को रिपेयर करेगा, मरम्मत करेगा, और उनको नया बना डालेगा। जबकि मैं जिस ख्याल के साथ मुत्तफिक हूं, जरूरी नहीं कि आप भी मुत्तफिक हों, लेकिन वो ख्याल ये है कि हमारा खुदा जो सिर्फ कह देता है तो हो जाता है, उसको मरम्मत करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको हुक्म सादर करना है, और ये जमीन और ये आसमान और शम्सो कमर जाते रहेंगे, और हुक्म खुदाबंदी से फिर से एक नया आसमान
और एक नई जमीन खुदाबंद खुदा बना डालेंगे। अहदे अतीक में भी इसके ताल्लुक से रेफरेंसेस हैं। मैं आपकी तवज्जो यसाया नबी का सहीफा जो अंबियाए अकबर में से है, उसका 65 बाब यानी 65 और उसकी 7 आयत। तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा की बदकिरदारी का बदला इकट्ठा दूंगा, जो पहाड़ों पर खुशबू जलाते और टीलों पर मेरी तकफीर करते हैं। बस मैं पहले उनके कामों को उनकी गोद में नाप कर दूंगा, यानी मुकम्मल तौर पर मैं उन कामों को नाबूद करूंगा। जो जो हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्लियरली इसके बारे में पता चलता है। और अगर एक आयत पीछे चले जाए 5, तो लिखा है, जो कहते हैं तू अलग ही खड़ा रहे, मेरे नजदीक ना आ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पाक हूं। ये मेरी नाक में धुएं की मानिंद और दिन भर जलने वाली आग की तरह हैं। नाबूद हो जाएंगे सब के सब जिनकी बाबत हम कलाम खुदा में वाज़े तौर पर देखते हैं। और इसके अलावा इस बात को जानने की जरूरत है कि जब यह लिखा है कि आसमान और जमीन उसके आगे से भाग गए, इससे मुराद यह है कि कोई भी खुदा की अदालत से बच नहीं सकता। कोई भी उसकी अदालत से बच नहीं सकता, क्योंकि लिखा है भाग गए, लेकिन उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिली। कहां भाग कर जाएंगे? ज़बूर 139 तो आपको आता है, खुदावंद आसमानों पर चढ़ जाऊं, जमीन पर, जमीन के नीचे पानियों में, आप तो वहां भी मुझे ढूंढ लेंगे। तो ये भाग जाना और कहीं भी जगह ना मिलना से मुराद ये है खुदा की अदालत से कोई भी बच नहीं पाएगा, क्योंकि हम रसूलों के आमाल की किताब और उसके 17 बाब की बड़ी मारूफ आयत है 17 की 31, जहां पर लिखा है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर यह बात सब पर साबित कर दी है। अदालत का एक दिन मुकर्रर है और उसके मुताबिक उस अदालत को हो कर रहना है। और एक और, अगर अमाल 10 बाब देखें और उसकी 42 आयत 10:42, तो यहां पर यह लिखा हुआ है, और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मनादी करो और गवाही दो कि यह वही है जो खुदा की तरफ से जिंदू और मुर्दों का मुंसिफ मुकर्रर किया गया है। और फिर लिखा है, इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं। कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। इसके अलावा कोई और शख्सियत नहीं। देखिए, अदालत वही कर सकता है, दूसरों का इंसाफ वही कर सकता है जिसकी अपनी जात में कोई ऐब ना हो। खुदा के हुजूर कोई ऐबदार मुल्जम किसी दूसरे की अदालत नहीं कर सकता, ना ही सिफारिश कर सकता है। और खुदा के हुजूर सिफारिश का तो खैर ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन कोई मुजरिम और मुल्जिम खुदा के हुजूर इस बात को पेश नहीं कर सकता कि मैं अदालत करूंगा, और खुदा किसी ऐसे शख्स को मुकर्रर करता भी नहीं है। उसने एक दिन ठहराया है और इस दिन वो तमाम लोगों की अदालत करेगा। एक बात जिसका यहां पर जिक्र करता चला जाऊं,
वो ये है कि ये अदालत ईमानदार लोगों की अदालत नहीं है। वो जो मसीह यस्सु में नई पैदाइश पा चुके हैं, ये उनकी अदालत नहीं है। सबब यह है कि वो जो मसीह यस्सु पर ईमान ला चुके हैं, खा किसी जमाने में भी उनकी अदालत ऑलरेडी सलीबे कलवरी पर हो चुकी है। हालेलुया। मेरे और आपके गुनाहों की अदालत ऑलरेडी सलीबे कलवरी पर हो चुकी है, सजा मिल चुकी है, गज़बे इलाही ठंडा हो गया है, सारा जलाल इंतजाम इलाही के तहत खुदावंद यीशु मसीह को मिले जो मेरे और आपके इब्जी हुए। तो हमारी अदालत तो ऑलरेडी हो चुकी है। इस बात को जानने और समझने की जरूरत है। लेकिन इस बड़े सफेद तख्त की अदालत में वो तमाम लोग जिन्होंने मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया, वो लोग शामिल होंगे। हम जब नेक्स्ट अगली आयात को तलावत करेंगे और देखेंगे तो फिर पता चलेगा। लेकिन ईमानदार लोगों की अदालत है तो सही, लेकिन अब उनके लिए यह फैसला नहीं होगा कि इसको जहन्नम में फेंक दो और इसको फिरदौस में भेज दो। नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है। इसीलिए तो मसीह खुदावन ने यह फरमाया है, जो मुझ पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब से जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। कितनी एक आयात इस बात को बयान करती है। ईमानदारों की अदालत है तो सही, लेकिन ये वाली अदालत नहीं है। वो अदालत ईमानदारों को रिवॉर्ड और अजर से मुताल्लिक है। उस नियत के मुवाफिक और के मुताबिक जिस नियत के तहत मैं और आप खुदावंद की सेवा करते हैं। देखिए, खिदमत करते हुए तो लोग हम सब को देखते ही है। हम में से हर को मुख्तलिफ तरह की नेमतें मिली हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन किस नियत से करते हैं, हमारे दिल में क्या है, ये तो सिर्फ खुदावंद खुदा ही जानते हैं ना। आप मेरे बारे में नहीं जानते, मैं आपके बारे में नहीं जानता। लेकिन हकीकत और सदाकत यह है कि खुदावंद हम सब के बारे में जानते हैं कि जो खुदा का काम हम करते हैं वो टेढ़ पालने के लिए करते हैं, टुकर जमा करने के लिए करते हैं, टबर पालन वास्ते करते हैं, प्रॉपर्टीज बनाने के लिए करते हैं, या खौफे खुदा रखते हुए सलीब पर अदा की गई कुर्बानी के एहसान तले रहते हुए शुक्रगुजारी के तौर पर जो काम हम करते हैं वो करते हैं। बात यह है, खुदावंद मेरे बारे में और आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये जो एक और तख्त है, बस 2 रेफरेंसेस के बाद मैं दुआ करूंगा। पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को खत लिखा और लिखते हुए पहले खत में और इसके 3 बाब और उसकी 12 और 13 में यूं फरमाते हैं, और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रदा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन
आग के साथ जाहिर होगा और उस काम को बता देगा, और वो आग खुद ही हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। हर एक के काम को वो आग आजमा लेगी। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। इसलिए तो मसीह खुदावन ने एक और मकाम पर कहा, उदों बहुत सारे लोग आके आखणगे, ओ जी मैं ते मकाशफा दी किताब दी स्टडी कीती सी ते करवाई भी सी, ओ जी मैं ते 20 वारी बाइबल खत्म कीती है, खुदावन भुल गए हो तुसी। खुदावन कहेंगे मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। और इसी तरह करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया दूसरा खत और इसका 5 बाब और इसकी 10 आयत भी गौर तलब है। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर एक शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, खा भले हों खा बुरे। ये है वो अजर जिनकी बाबत बात हो रही है। और मसीह खुदावन ने मुकाशफा की किताब में बजाते खुद भी फरमाया है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक को देने के लिए अजर मेरे पास है। ये खुदावन यीशु मसीह खुद फरमाते हैं, कोई और फरमाता नहीं है। मेरे अजीजों, केवल इसके कि वो वक्त आए कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, बेहतर नहीं कि हम आज ही अपने दिल खुदावन यीशु मसीह को दे दें। एक ही राह है खुदा बाप के पास जाने के लिए, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और इस बात को भी जानने की जरूरत है कि कहीं अपनी अना और अपनी अकड़ की खातर धोखे में न रह जाए। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। देर न कीजिए, आज उस रास्ते पर हो चलिए, अपने पापों का इकरार करते हुए और उनसे तौबा करते हुए और मसीह यीशु पर ईमान लाते हुए। और सेकंडली, हम जो खुदावंद के खुदाम हैं, अपने आप को खादिम कहते हैं, खादिम काटी कहते हैं, बड़ा कुछ आजकल हम कहते हैं, लेकिन नहीं हो, जो कुछ भी है, खुदावंद आज मुझ पर और आप पर अगर निगाह करें तो उनको क्या नजर आता है कि मैं किस नीयत से जो काम करता हूं खुदावंद के लिए वो करता हूं। दिखावे के लिए? किस नीयत से कि लोग मुझे बल्ले बल्ले कहें? यीशु ने कहा, ए लोकां दी जड़ी बल्ले बल्ले ही ना, एहो ही तेरे लिए काफी होवेगी, फिर मेरे बनू कुछ नहीं मिलेगा तेन। तो अगर हम बंदू से बल्ले बल्ले करवाते हैं तो फिर रब के हो नहीं सकते। पौलुस रसूल कहते हैं, अगर मैं बंदू को खुश करता तो मैं खुदा का बंदा ना होता। आए हम रब की खुशनुदी के लिए करें, बंदे देखें या ना देखें, अजर बंदू की तरफ से मिले या ना मिले, चंदा मिले या ना मिले, बोझा गर्म होए या ना होए, खुदावंद की सेवा में लगे रहे। अजर मालिक के पास है। नियतों के मुताबिक हमें अजर मिलते हैं। हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ए कादिर मुतलक खुदा, आप जो हमारे निरे खुदा ही नहीं बल्कि मसीह यीशु में हमारे रूहानी आसमानी बाप भी हैं,
شکر گزار ہیں اس کلام کے لیے جو آج آپ نے ہم سے کیا ہے۔ فضل بخشیے کہ اس کلام کے مطابق ہم اپنا جیون بسر کرتے چلے جائیں، اور اگر اس کلام کے مطابق میرے ناظرین اور سامعین میں کوئی ایسا یا کوئی ایسی ہے جس نے مشنوں کو، چرچز کو، پادریوں کو تو قبول کیا، لیکن خداوند یسوع آپ کو نہیں، منت کرتا ہوں کہ کلام کے ہتھوڑے سے انہیں توڑیے تاکہ وہ اپنا دل آپ کو دے سکے۔ اور خداوند ہم جو مختلف طریقوں سے آپ کی بادشاہی میں محو اور مسرور ہیں، فضل بخشیے کہ ہم راستی کے ساتھ اور آپ کی خوشنودی کے لیے وہ کرنے والے ہوں جس کے لیے آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ ہمیں اپنے من میں کھوٹے اور کھرے کی پہچان بخشیے، ہماری سوچوں کو تبدیل کیجیے تاکہ آپ کے کلام کے سانچے میں ہم ڈھلتے چلے جائیں، اور اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ہمارے ان ناظرین اور سامعین میں اگر کوئی بیمار، پریشان حال، دکھی ہے، جاب لیس ہے، فکروں اور ٹینشنوں کے پہاڑ کے نیچے دبا ہوا یا دبی ہوئی ہے، یسوع کے نام سے اس کی شفا اور اس کی رہائی کے لیے ملتجی ہے۔ رحم کیجیے اور معجزہ کیجیے، خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی مرضی ہوگی، تب تک کے لیے آپ سب خداوند کی حفاظت اور خداوند کی امان میں رہیں۔ آمین۔